Good morning, students. So, myself Sheetal Bhavsar, and today we learn about the inline frame. It is very easy topic and very interesting topic. So, what is the inline frame? Inline frame is nothing but the window. So, in that window, you can add another web page of the HTML page. मीन्स एक HTML पेज है आपका और उस पर अगर आपको डिफरेंट वेब पेजेस और ऐड करने हैं, दैट टाइम वी यूज़ द इनलाइन फ्रेम. For example, you can see here, this is the Yahoo page, right? Home page of the Yahoo website. So you can see here there are lots of different windows are there. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इन का है, याहू का, सेंसेक्स का है, ये मैच का कुछ तो भी है और ये टेम्परेचर का है. Same you can see here the advertisement regarding the coronavirus. Also there are lots of news are there. So for that we use the iframe in HTML5. You can also create this type of frame structure or this type of website or web page using the inline frame in HTML5. So to inline frame we use the iframe tag. कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं? टू यूज़ फॉर दैट वी यूज़ द iframe element. So the iframe element creates an inline frame. Inline frames are often used in online advertisement where the content of the iframe is an advertisement from an external party. So for advertisement purpose we use the inline frame most of the time. So HTML5 allows the incorporation to be seamless, means no scroll bars, borders, margins. यानी अगर आपने आई फ्रेम को सीमलेस मैनर में अगर आप डिस्प्ले करते हो, दैट मीन्स आपका जो HTML का जो मेन पेज है और उसमें अगर आप कोई आई फ्रेम ऐड भी कर रहे हो तो वो डिफरेंट ऐसे नहीं लगेगा कि डिफरेंट आपने विंडो ऐड की है, वो ऐसे लगेगा कि वो विंडो भी उस चीज़ का पार्ट है. फॉर दैट वी यूज़ द सीमलेस, बट most of the browsers not supported the seamless attribute. Okay, so आपके सिलेबस में भी seamless attribute का कोई ज़्यादा ये नहीं है, सिर्फ उन्होंने दिया है डिस्क्रिप्शन. Then we learn about the attributes of inline frame. So first attribute is the src, where you have to provide the path of the web page, HTML फाइल या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपको आई फ्रेम में देने हैं उसका पाथ हम प्रोवाइड करेंगे इन द SRC एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज द हाइट एंड विड्थ. if you have to set the height and width of the iframe, that time we use the height and width attribute of that iframe tag. Next is the name. Name sets the name of the iframe. If you have to set the name, that time we use the name attribute. Next is the src doc. src doc specifies the HTML content of the page to show in the iframe. यानी अगर आपको कोई HTML पेज नहीं डिस्प्ले करना है, if you want to add directly text, that time you use the src doc, राइट. जैसे SRC में मैंने आपको बताया आपको पाथ प्रोवाइड करना है. अगर आपको कोई दूसरी फाइल आपको उसमें नहीं डालनी है, आपको SRC डॉक में आप डायरेक्टली लिख दो पैराग्राफ, डायरेक्टली लिख दो हेडिंग टैग, इमेज लिख दो. सो वो पेज डिस्प्ले होने की जगह पे आपका जो भी आप टैग लिखोगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इन द आई फ्रेम. ओके, ये जो है SRC एंड SRC डॉक, ये दोनों एक साथ कभी भी काम नहीं करते. एक तो SRC डिस्प्ले होगा आपके आई फ्रेम में, अदरवाइज SRC डॉक डिस्प्ले होगा आपके आई फ्रेम में. ओके, सो नाउ वी कैन सी एग्जाम्पल ऑफ द इनलाइन फ्रेम. सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट इज द डॉक टाइप HTML. दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लाइन ऑफ योर वेब पेज HTML. देन बॉडी यहाँ पे मैंने हेड पार्ट नहीं लिखा है. इफ़ यू हैव टू ऐड यू कैन ऑल्सो ऐड इन द हियर हेड पार्ट, टाइटल इन द हेड, राइट. I directly wrote here the body part. In the body part
यहाँ पे मैंने H2 लिया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है HTML frames. Next, I am going to add paragraph in the web page. Okay. Now, this is the main tag जो आज हम पढ़ रहे हैं, that is the iframe. So, iframe, then src1.html. What is the 1.html? मैंने ऑलरेडी 1.html एक पेज बना के रखा है, वो आपके आई फ्रेम में यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो, वो आपको डिस्प्ले हो रहा है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1.html में एक बैकग्राउंड सेट कर दिया येलो और एक पैराग्राफ दे रही है, दैट्स इट. और वो उसका बाद मैंने आई फ्रेम में src1.html ऐसे लिखते हैं. देन हाइट, सेट द हाइट एंड विड्थ, सेट द विड्थ. That's it. And iframe is nothing, it's not a empty tag, means you have to provide the opening and closing both tag you have to provide for the iframe tag. Okay, so is that simple? It's very simple. You just आपके सिंपल प्रोग्राम में you have to add only the iframe tag, that's it. That is the use of the inline frame. And I already told you that you can add more than one iframe in one HTML page, right? Next is nothing but the src doc attribute. So what is the src doc attribute? I just told you what is the src doc. So this is the example you can see here. After the body tag I wrote here the h1 tag, so you can see the h1 tag output here. Then I am going to take iframe, उसमें मैंने src doc इक्वल टू डबल कोट में पैराग्राफ लिख दिया है. So you can see here that paragraph in the iframe, right? And I also took here src attribute, जहाँ पे मैंने 1.html दिया है, लेकिन वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, वो जो है वो src doc दिखाई दे रहा है. So if your browser support src doc, अगर आपने पेज ओपन कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, राइट? अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके src doc को सपोर्ट कर रहा है तो वो जो ये पैराग्राफ है वो शो करेगा. अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर src doc को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आपका 1.html जो src में मैंने दिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, राइट? सो दे बोथ कैनॉट वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम नहीं कर सकते. आपको एक तो src doc रन होगा या फिर src रन होगा. इट्स डिपेंड्स ऑन योर ब्राउज़र, वो ब्राउज़र पे डिपेंड करता है कि वो src doc को सपोर्ट करेगा या फिर src को ही डिस्प्ले करेगा. ओके, दैट इज़ द यूज़ ऑफ द src doc एट्रीब्यूट. यहाँ पे आप src doc में हेडिंग पार्ट भी लिख सकते हो, इमेज डाल के देखो, टेबल डाल के देखो, आपको वो कुछ अलग आउटपुट दिखाई देता है क्या, राइट? सो दिस इज़ नथिंग बट दैट, जो अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है. सो दिस इज़ नथिंग बट द src doc एट्रीब्यूट. ओके, next point is nothing but the web hosting. So what is the web hosting? See, I'm a developer and I develop one website, but my website is not on internet, right? तो कोई उसे देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा. So if I develop a website, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो दूसरे के पास जानी चाहिए. देन आई हैव टू परचेज सम स्पेस ऑन द इंटरनेट, और उसे ही कहा जाता है वेब होस्टिंग. ओके, जो इंटरनेट पे हमें स्पेस प्रोवाइड करके देगा उस सर्विस को कहा जाता है वेब होस्टिंग. और मैंने स्पेस परचेज कर लिया, वहाँ पे मैंने मेरा वेबसाइट डाल दिया. अभी बाकी के लोग इंटरनेट पे से मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं देख सकते. ओके, सो वेब होस्टिंग इज़ द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्पेस ऑन द इंटरनेट.
is made available on the internet with the help of web hosting. The website जो है आपकी वो इंटरनेट पे कैसे प्रोवाइड की जाएगी, अवेलेबल होगी यूजिंग द हेल्प ऑफ द वेब होस्टिंग. Then what is the web host? The companies that provide the web hosting service are called the web host. Okay, web host own and manage web servers. These web servers offer uninterrupted internet connectivity. जो वेब होस्ट है वही आपका वेब सर्वर प्रोवाइड करेगा, यानी स्पेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आपकी वेबसाइट वो अपलोड करेंगे और वो अपलोड होने के बाद कोई भी उसको देख पाएगा, राइट. Next is the types of the web hostings. There are main three types: shared hosting, free hosting and dedicated hosting. Shared hosting, it is a cost effective, यानी ज़्यादा छोटे वेबसाइट के लिए ज़्यादातर शेयर होस्टिंग यूज़ की जाती है जिसमें आपको कम पैसे में स्पेस अवेलेबल हो जाती है. व्हाट इज़ अ फ्री होस्टिंग? फ्री होस्टिंग मतलब कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए आपको स्पेस प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद आपको उसे परचेज करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ द डेडिकेटेड होस्टिंग. डेडिकेटेड होस्टिंग इज़ फॉर द लार्ज वेबसाइट. उसके लिए डेडिकेटेड होस्टिंग यूज़ की जाती है, लेकिन उसमें बहुत ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. ओके, सो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्ज़ाम इज़ द इनलाइन फ्रेम. They may ask you about the use of the iframe and attributes of the iframe, right? Is related information related to the src doc. These types of questions may be asked in your exam. Okay, so for today that's it students. So हम मिलेंगे for the next session. Okay, till then, goodbye.